Okay, so good morning, students. Hope you are fine. You have done with your Diwali holidays as well. I hope you have filled up your forms as well of all of the exams, right? Either RMS, Sainik School, UP Sainik, and All India Sainik, correct? So I hope everything got done with the form filling with accuracy. You can take helps in the form filling as well. I have told you in earlier slides as well, right? So you can take the helps from us either in the online and offline manner. All of the contact details are available in the given slide below, right? So you can just contact us, you can call us, and we can help you out, right? You can have the supports of coaching from us in online and offline manner, right? For that as well you need to connect, correct, in the given details, correct? Okay, so this was the important information to share with you people, right? Other than this, one more important thing we have come up with. Okay, first thing is this, that we have started your PYQ series, multiple of PYQs of year 2017, 18, 19, 20, 21 has been solved for you, right? We have given the solutions, correct? So in the same way, we have prepared one more thing for you, as we have promised to you that we will be coming up with the revision sessions of grammar topics, correct, with the fundamental understandings, correct, so that you can in the last run of the exam preparation you can just have a help from our side, correct, and you would not be having unnecessary issues with your preparations while solving questions in the practice papers or PYQ solvings, right? Because sometimes it happens you need to revise, right? So we are there to help you out for the revision. By this you can cover your revisions easily and in a frequent manner, in a rapid manner, correct? You would be revising with your resources, copies, notes and books as well, but we will be helping you out for the quick revision and the doubt sessions as well, correct? Okay, so we are here with the one uh, grammar concept class, which is from the starting we will cover that, okay? Each and every topic will be covered from all part of speech, sentence, all tenses, all other kind of grammatically concepts, okay? So this is GDA again with the help for you in terms of grammatical concepts, right? English grammar concepts with us, right? We will be starting with part of speech now, right? This is the first slide for this grammar topic revision series, right? Hope you will connect well with the same. Hope you have started your preparations and obviously filled out your forms, right? So that we can connect better for the same, correct? Okay. So over here with the same grammatical concepts, we will learn from basic to advanced each and everything, and the revisions as well for the parts of each and every grammar section, correct? And simultaneously we will be doing PYQ series as well. So over here we will be revising your all of the topics, and in the other manner, in the other side you will be preparing your PYQ series solutions as well, correct? This is how. So okay, this is first slide of grammatical concept revision series, right? This is for PYQ series along with the grammatical concepts, correct? So we start with part of speech. Now let's check what we will be getting for Sainik School and military school, right, preparations. Okay, let's check, let's start this. Yeah. Okay. So how it is, dear? All of the tips and tricks I will share as well, and we will start with the basics. Okay. Okay. Let's start. So firstly, in part of speech we know there are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, and prepositions. Right? Okay. So this is how. Now we will start with first
which is noun, which is very basic, we know that. Let's start and revise it out. A noun is a word. What is the definition of noun? A noun is a word that names a person, place, animal, thing or idea. Or we can say noun is a word, or the words are used as a noun in the name of person, place, animal, thing or idea. Idea, see what idea it is in this definition. I will just tell you: person, place, animal, thing. From the starting we know this, right? Very well, right? Okay, for an example to understand it better: person, teacher, Arjun, anyone; place, school, Delhi, anyone; animal, lion, cow, anyone, right? Thing, book, table, etc. Idea, feeling, right? So there is no problem, I guess, for you in this one. Right, sorry. Person, place, animal and thing, right? Very basic it is. Idea and feeling. Idea and feeling, courage and happiness. Such kind of ideas, like which are not shown, only can be felt. So these are classified as ideas and feelings, and courage and happiness are the part of that. Correct? Okay, so this is how. Next. Okay, this is simple. Then comes up here types of noun. Okay, types of noun. Proper there now. Noun definition being completed with the help of example. I have given you the example as well. How it is, we can create one or two sentences as well over here. It would be helpful for you. Like suppose person, like it is given in the example teacher and Arjun. So how it can be? The teacher is good in teaching. We can create Arjun is good in studies, right? Place. My school is far, right, away from my home. Okay, Delhi is a big city. Animal, lion is king of jungle or forest, right? Animal, cow, cow gives us milk. Okay, thing, book, my book is on the table, right? Table itself. What we can say, there is a cup or there is a glass of water on the table, right? Idea, feeling, how we can create courage. So he is he has shown courage in the whole of the exercise or whole of the practice of military sessions. Okay, obviously you need to show courage in military things, right? Feeling, idea and feeling, they are not being shown. You can't see idea and feel and ideas. You can only feel. Feelings obviously not can be shown. You can be felt. Okay, this happiness. Happiness is you can say I found it, I feel happy, या तो ये कह दो I feel happy in cycling, right? While cycling. और अगर आप ये happiness का use करना चाहते हो, so cycling gives me happiness, right? This is how. Okay, so these are the basic examples of noun definition and examples of noun, right? Okay, now types of noun. Now there are types of noun. How? 6 or 7 are there, or 5 or 6 as per your syllabus, right? We will check. First is proper noun. Okay, there are types of noun. Whatever examples in the earlier slide we have given, these are examples of noun, but each and every example of noun does have it particular type as well. Let's check it out in this next slide. Okay, yeah. So first is proper noun. Proper noun means the name of a particular person, place or thing, right? Given. That's what it was given. Dekho. See, it was given in first example. I'll just compare it up, right? Then you will check. Place, school and Delhi. ठीक है, अब इसको check करना. This one, proper noun. There were two examples given, school and Delhi. I guess, yeah, school and Delhi. Okay, let's check school किस में आता है, in which category and which type of noun, और Delhi किस type of में आता है. Let's check. तब आपका practice हो जाएगा, right? Proper noun, the name of a particular person, place or thing. अब बताओ, school. We have said school as in one example, right? ये school, right? This one, school. School का कोई नेम गिवन है? नो गिवन.
नो ना, नॉट गिवन एनी नेम, पर्टिकुलर नेम नहीं गिवन है। स्कूल है, स्कूल तो कोई सा भी हो सकता है, डीपीएस हो सकता है, मिलिट्री स्कूल हो सकता है, कॉन्वेंट स्कूल हो सकता है, केवी स्कूल हो सकता है, राइट और नॉट, मॉन्टेसरी स्कूल हो सकता है, करेक्ट और नॉट। सो एनी स्कूल वुड बी कम्स अप इन द कैटेगरी ऑफ स्कूल, ठीक है। नेम नहीं गिवन है ना, सो दैट्स वाई, क्या ये बताओ, क्या ये प्रॉपर नाउन में आएगा द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग? नहीं आएगा, राइट। दैट्स हाउ देयर वर टू एग्जांपल, फर्स्ट इज स्कूल, स्कूल इज नॉट इन द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर नाउन, राइट। व्हाइल प्रॉपर नाउन का एग्जांपल क्या है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ये भी स्कूल है, दिस इज अगेन ए स्कूल, बट over here how it is that it is given with the particular name of that school, right, with the particular name of that school, correct। so ये जो स्कूल का नेम गिवन है, इससे पता चल रहा है हम किसी एक स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर वन स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नॉट द कॉन्वेंट, नॉट द मॉन्टेसरी, नॉट द केवी, नॉट द डीपीएस, करेक्ट और नॉट, पब्लिक प्राइवेट स्कूल, राइट। हम सिर्फ इस स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, दैट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इज ए गुड स्कूल, वी कैन से दिस, राइट, इज ए गुड स्कूल, इट्स ए वेरी रेपुटेटेड स्कूल, वी कैन से लाइक दिस, ठीक है। तो हमने उसका नाम गिवन किया हुआ है, वाइल इन दिस एग्जाम्पल यहाँ कोई नेम गिवन नहीं है, दैट्स वाई ये स्कूल किसी पर्टिकुलर स्कूल के बारे में नहीं गिवन है, ये कॉमन स्कूल, जनरल स्कूल के बारे में गिवन है, राइट। एंड दैट्स हाउ ये स्कूल जब बोलेंगे तो ये स्कूल प्रॉपर नेम नहीं, प्रॉपर नाउन में नहीं काउंट होगा। वाई, अब दूसरा एग्जाम, ओके, इसका दूसरा एग्जांपल फर्स्ट चेक कर लेते हैं, प्रॉपर नाउन का, व्हाट इट इज, इंडिया एंड मंडे, ओके। इंडिया, वाई, क्योंकि इंडिया इज ए नेम ऑफ एनी कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री, एक ही कंट्री का नाम इंडिया, किसी भी कंट्री का नाम इंडिया नहीं है दूसरा अदर देन दिस, और वहाँ कंट्री तो लिखा नहीं है, वहाँ गिवन है इंडिया, दैट मीन्स नेम गिवन है, दैट मीन्स इट्स अ नेम ऑफ पर्टिकुलर कंट्री विच इज ओनली वन, किसी दूसरी कंट्री छोटी बड़ी किसी का नेम इंडिया नहीं, दैट्स हाउ इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन, वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर कंट्री नेम्ड इंडिया, राइट, दिस इज मंडे, ओके। अब बताओ, मंडे इज ए नेम ऑफ डे, वी से ना टेल अस, बच्चों से पूछते, टेल अस नेम ऑफ द वीक डेज, राइट, वीक के डेज जो होते हैं उनके नेम बताओ। सो कहाँ से स्टार्ट होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो क्या है, नेम है ना, नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक, राइट, नेम, दैट मीन्स नेम हो गया प्रॉपर नाउन, राइट, दैट्स हाउ। सो मंडे जो डे था वो डे का नेम हो गया किसी एक, क्योंकि मंडे सिंगल एक ही होता है, मंडे दूसरा नहीं होता। व्हाट इट मीन्स, ऐसा नहीं है यू से सर मंडे तो 4 आते हैं एक मंथ में, नो, यस मंडे आते हैं, बट एक वीक के अकॉर्डिंग आते हैं, बिकॉज 4 वीक्स आते हैं एक मंथ में, इंक्लूड्स 1 मंथ, इंक्लूड्स 1 कंप्राइज 4 वीक्स, हर वीक में मंडे आता है, वो तो रिपीटेड हो गया, राइट, बट वो तो रिपीटेड हो गया, दैट्स वाई सिमिलर, बट द थिंग इज दिस, मंडे वीक में तो एक ही बार आता है ना, और मंडे मंथ के डे का नेम नहीं होता, मंडे वीक के डे का नेम है, दैट्स व्हाई मंडे इज अ नेम ऑफ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर डे, दैट्स व्हाई मंडे इज ए कम्स इन प्रॉपर नाउन, ओके, ठीक है। नाउ यहाँ एक और था, दिल्ली, क्या दिल्ली प्लेस जो गिवन था, क्या दिल्ली इसमें आएगा प्रॉपर नाउन में, बताओ, यस और नो, कमेंट में बताना आप लोग, ठीक है, आएगा, क्यों, दिल्ली इज अ नेम ऑफ ए सिटी या कैपिटल कह सकते हो, राइट, लेकिन सिटी, एक सिटी का नाम दिल्ली है क्योंकि अदर देन दैट सिटी किसी और छोटे या बड़े सिटी का नाम समवेयर अराउंड देयर नहीं है दिल्ली, केवल एक ही सिटी का नाम दिल्ली है, दैट्स वाई वो एक पर्टिकुलर है, एक कॉमन नहीं है, पर्टिकुलर है, एक है, स्पेसिफिक है, यूनिक है, यानी वन है, ठीक है, दैट्स वाई दिल्ली वुड बी द एग्जांपल ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ 2 एग्जांपल्स है ना, स्कूल इज नॉट काउंटेड इन द प्रॉपर नाउन, दिल्ली इज काउंटेड इन द प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज नेम ऑफ ए particular this one particular place, correct or not, place, yeah, place, this, okay, this one. Now second one, hope you understand it very clearly, ठीक है, one by one एक एक करते हैं, हम इस तरह से समझेंगे इसको कि हम लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं, राइट,
क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं होगा रिविजन्स के लिए मल्टीपल टाइम, राइट। सो दिस इज द लास्ट रिवीजन जिसमें आपको पहले का अगर कोई डाउट है या इशू है या मिस हुआ है लर्निंग, वो सब कवर हो जाएगा। जो बेसिक पढ़ना ज़रूरी है वो भी सब कवर हो जाएगा, और जो लास्ट टाइम रिवीजन है वो भी सब कवर हो जाएगा, राइट। दैट्स आवर पार्ट, राइट। एंड यू वुड बी रेडी विद योर एग्जाम सॉल्विंग, ठीक है। इसको लर्न इधर से रिवाइज करेंगे आप, और ऑन द अदर हैंड आप PYQs के सॉल्यूशंस करेंगे। यहाँ से रिवाइज करेंगे, वहाँ सॉल्यूशन करेंगे। दैट मीन्स वहीं पे एक्सरसाइज में प्रैक्टिस हो जाएगी आपके कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। सो दोनों कनेक्टेड रहेंगे तो मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर लोगे, ठीक है। और इसके यू नो दिस इज द लास्ट टाइम, लास्ट मंथ, इसके बाद रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो इस बार, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो ओनली प्रैक्टिस टेस्ट के, सो दैट आपका सब कुछ वहीं की वहीं कवर हो जाए और लास्ट फाइनल प्रैक्टिस हो जाए, प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। सो नाउ कॉमन नाउन, common noun is the second one, general name of a person, place or thing. What it is saying, general name of a person, place or thing, dear, okay। क्या आया, बॉय, सिटी, डे, एग्जाम्पल्स। नाउ अब पहले तो इसको समझ लो, जनरल नेम। द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन इज द प्रॉपर नाउन सेज द नेम ऑफ ए particular one, specific, fixed, right, place, person or thing, while common noun says the other thing only, right, the just other thing। general name, general, that means not particular, okay, common कह सकते हो, right, right, that's all। सो अब इस इन एग्जाम्पल्स को फिर से टैली करो। इसमें था टीचर, था टीचर आएगा किस में, कॉमन नाउन में, क्योंकि टीचर तो कोई भी हो सकता है, ए टीचर, बी टीचर, सी टीचर। एक टीचर का नेम लाइक मी, निमिश इज अ टीचर, राइट। समवन ABC, I don't want to name someone, but anyone can be the teacher, right। बहुत सारे टीचर्स होते हैं, you know that। so सारे टीचर्स के पर्टिकुलर नेम होते हैं, राइट। अगर पर्टिकुलर नेम वाइज कॉल करेंगे इट वुड बी कमिंग इन प्रॉपर नाउन। अगर कॉमन में कॉल करेंगे किसी को कि टीचर, टीचर ने बोला अच्छा, या टीचर ने मार्क अच्छे दिए, या टीचर ने अच्छा पढ़ाया, राइट, देन इट वुड बी काउंटेड एज कॉमन नाउन, ठीक है। इन दैट नाउ अर्जुन भी गिवन था। अर्जुन किसी का पर्टिकुलर नेम होता है, अर्जुन नॉर्मली तो सब नहीं होते, अर्जुन किसी का पर्टिकुलर नेम होता है पर्सन का, राइट, किसी बॉय का, किसी स्टूडेंट का, किसी बच्चे का, वो काउंट होगा नॉट इन कॉमन नाउन बट इन प्रॉपर नाउन, ओके। दिस नाउ सेम थिंग आ गई। देखो यहाँ एग्जांपल से बॉय, सिटी एंड डे। बॉय, अर्जुन हो गया बॉय, तो अर्जुन अगर बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, बॉय बोलेंगे तो कॉमन नाउन में काउंट होगा, ठीक है। सिटी, सिटी सिमिलर टू दिल्ली, दिल्ली बोलेंगे दैट वुड बी अ वन पर्टिकुलर सिटी नेम, then it would be counted as proper noun, or city would be counted as common noun। day, day same as Monday, डे बोलेंगे तो कॉमन नाउन, मंडे बोल दिया तो प्रॉपर नाउन, ओके, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई होप अच्छे से, राइट। मैं कंपेयर करके एंड रिलेट कर करके बता दूंगा आपको, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं आ रहा है, ओके। बिल्कुल भी क्लैरिटी आ जाएगी, ये इसमें काउंट होगा और ये इसमें होता है और ये इसमें होता है, और क्यों होता है और कब होता है और कैसे होता है, सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे उसमें, ठीक है, आपके डाउट्स। नाउ काउंटेबल नाउन, अ नाउन यू कैन काउंट हैज सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। काउंटेबल बाय नेम इटसेल्फ इट इज शोन। देखो इन सब का क्या है ना, बाय नेम वो शो होते हैं। कॉमन का मतलब होता है कॉमन, जनरल। प्रॉपर का मतलब वन, प्रॉपर मतलब वन, ठीक है ना। काउंटेबल मतलब काउंट होने वाला, है ना। अ नाउन यू कैन काउंट एंड सिंगुलर एंड प्लूरल। तो काउंटेबल नाउन जो होता है, अ नाउन यू कैन काउंट हैज सिंगुलर और प्लूरल। एक कोई नाउन जो है, फॉर एन एग्जाम्पल ले लो, एप्पल, एप्पल्स, बुक एंड बुक्स, ठीक है। ये जो है नाउन के एग्जाम्पल, ये अगर काउंटेबल है, काउंट हो सकते हैं, वो आ जाते हैं काउंटेबल नाउन। अब नाउ दो एग्जाम्पल मैं देता हूँ, सपोज, राइट। फर्स्ट थिंग इज दिस, नहीं सॉरी, ओके, लेट मी गिव 1 मिनट, ओके, ठीक है, राइट।
ठीक है, ओके। सो ओवर हियर वी हैव वन एग्जांपल, ठीक है। दूसरा पेन लेते हैं जो आपको क्लियर दिखे, ठीक है। दिस वन इज बेटर, राइट, ओके, ठीक है, ओके। एप्पल, एक हो गया एप्पल एग्जांपल, एक हो गया बुक, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज इसमें नहीं लेते एग्जांपल, ठीक है। हम एक चेक करते हैं, क्या ये इसका एग्जांपल हो सकता है? वाटर, okay students, water. I hope you are clear with this, right? ठीक है, क्लियर होगा। सो आई सॉरी, लेट्स टेक टू एग्जांपल, वन इज एप्पल और वन इज वाटर, ठीक है। एप्पल काउंटेबल है, वन एप्पल, टू एप्पल, थ्री एप्पल, ठीक है। आई हैड वन एप्पल इन ब्रेकफास्ट, देयर आर फोर एप्पल्स इन फ्रिज, ठीक है, काउंटेबल है, ठीक है। अब एक वाटर ले लिया, अब क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव वन वाटर, आई हैव ही हैड 10 वाटर, नहीं ना, नो। दिस इज द एग्जाम्पल एंड डिफरेंस ऑफ these examples of countable noun। क्यों? एप्पल और एप्पल्स को आप काउंट कर सकते हो, एप्पल एक एप्पल, और एप्पल्स मतलब मल्टीपल, मोर देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 व्हाटएवर, राइट। और फिर 1 kg 2 kg आ जाएगा काउंटिंग में, राइट, ओके, दैट्स ऑल। सिमिलरली टू द बुक्स, बुक्स में वन बुक हो गई बुक, एंड बुक्स हो गई मल्टीपल, that means he has two books or multiple books of the same subject, or for the practice he has multiple books in his cupboard, he has multiple books in his library, right? This is up. Then comes up water. I hope now it is clear to you, right? Water. So this water के लिए हम क्या use कर सकते हैं? That I have 5 water. He has 1 water. No, he has 1 glass of water. ये तो बोल सकते हैं, लेकिन वहां पे काउंटिंग ग्लास की हुई, ना कि ग्लास फिल्ड ऑफ वाटर की, ना कि वाटर की, राइट। इसलिए वाटर काउंटेबल नाउन में नहीं आएगा। व्हाई आई हैव टेकन सच काइंड ऑफ एग्जांपल, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन सा काउंटेबल नाउन में आ सकता है, कौन नहीं आएगा, राइट, दिस वे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वाटर नहीं आएगा, while apple and books such kind of, like apple books, और कह सकते हो टेबल, चेयर, शूज, सॉक्स, शर्ट, these, ठीक है, coins as well, right, और money as well, ठीक है, ये सब काउंटेबल नाउन में आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो इन एग्जांपल्स में कुछ काउंटेबल नाउन था, हाँ था, ये है ना, बुक है, टेबल है, लॉयन भी है, काउ भी है, स्कूल भी है, टीचर भी है, ये सब काउंटेबल नाउन में आ जाएंगे। टीचर, 5 टीचर्स हो सकता है ना, 5 schools, 5 lions, 5 cows, right or not, 5 books, 5 table, 5 अर्जुन, ये नहीं होता, right, ये नहीं होता, right, this is how। और टू दिल्ली नहीं है ना, that's why, understood, this is how। So 3 of our types of noun have been covered, okay, remaining 3 are likewise, let's check। Uncountable noun, uncountable noun means a noun you cannot count, that means cannot count, no plural form। अब देखो आ गया सेम एग्जांपल्स, वाटर, एयर, शुगर, ठीक है। काउंटेबल अनकाउंटेबल में क्या डिफरेंस है, देखो, हैज सिंगुलर और प्लूरल, मतलब सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं, दैट मींस सिंगुलर भी हो सकता है उसका, यानी 1 और मल्टीपल, तो काउंट हो गए, राइट, काउंटेबल हो गए। अनकाउंटेबल में सिंगुलर ही सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता, जैसे वाटर, एयर, शुगर। अब बताओ, आप कहोगे सर वाटर तो प्लूरल होता है सी में, ओशियन में, ओके, क्योंकि बहुत सारा होता है ना, गैलन्स ऑफ, लीटर्स ऑफ, आप ये बोलोगे, ठीक है, ओके, वी विल कंसीडर दैट इन विद वन एग्जांपल आई क्लियर। आप बोलोगे सर एयर तो बहुत सारी होती है, थोड़ी सी नहीं होती, अगर बैलून में भी भरेंगे तो भी काफ़ी होती है, 1 एयर नहीं होती, ओके। शुगर तो सर काउंट हो जाएगी,
pieces, I mean उसके blocks, right, cubes. Okay, let's understand this uncountable noun. इन्होंने definition में क्या दिया? A noun you cannot count, मतलब जिसको आप count नहीं कर सकते. Noun तो है water, air and right, sugar, right, but इसको count नहीं कर सकते. That means इसका plural नहीं होता. आप अगर water है, देखो glass filled of water तो भी water कहते हैं. There is so much water in the sea, right, or huge amount of water in the ocean, कहते हैं. check it out, सब में water ही use हो रहा है, ना कि waters. टेबल का टेबल्स हो गया, आई मीन बॉटल का बॉटल्स हो गया, एप्पल का एप्पल्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया, राइट और नॉट, लॉयन का लॉयंस हो गया, टीचर का टीचर्स हो गया, राइट और नॉट, सिटी का सिटीज हो गया. सब में प्लूरल हो रहा है, बट इसमें वी कांट डू द प्लूरल. देयर इज ग्लास फुल ऑफ वाटर, तब भी वाटर आया, वाटर्स नहीं. ना आप सोचोगे ग्लास फुल ऑफ वाटर में वाटर आ गया और सी में बहुत सारा वाटर, देयर इज मच ऑफ द वाटर्स. वाटर्स नहीं होता, दैट इज रॉन्ग. दैट इज हाउ देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन द सी और द ओशन, अगेन वाटर. सो वाटर एंड वाटर, ठीक है, सेम रहेगा. प्लूरल फॉर्म होती ही नहीं है. एयर, आई हैव filled little bit of air in the balloon, ठीक है. और then you can say in the what you can say, in the big balloon of helium balloon there is a much air. फिर भी air आएगा, airs नहीं होगा, right. राइट, सी, एक होता है छोटा बलून बर्थडे पे जो आप लगाते हो, एक होता है ट्रैवल बलून, राइट, जिससे आप ट्रैवल करते हो, राइट, विद द हॉट एयर बलून, राइट. उसमें भी एयर होती है, वहां भी एयर को ईयर्स नहीं यूज करते, एयर ही यूज करते हैं, उसका प्लूरल नहीं होता. और यहाँ पे भी एयर को एयर, उसका प्लूरल नहीं होता, राइट. दिस इज हाउ करेक्ट दिस. देन कम्स अप शुगर. शुगर में क्या होता है? शुगर आप बोलोगे एक गिव मी वन शुगर, वन शुगर नहीं होता, एक क्यूब शुगर नहीं यूज की जाती. गिव मी शुगर, 1 टीस्पूनफुल ऑफ शुगर, 1 बाउल ऑफ शुगर, 1 पैकेट ऑफ शुगर. शुगर्स नहीं होता ना कभी. दैट्स हाउ इट इज कॉल्ड एज शुगर. ओके, दैट्स हाउ इट इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है. नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वी विल डू सम एक्सरसाइजेस एज वेल फॉर द सेम, राइट. छोटा सा प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको और क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है. इसलिए मैं पहले इतना क्लियर कर रहा हूं कि आप वो एक्सरसाइज को कर सकते हो इजीली. ओके, fine, let's do this as well. Abstract noun, fifth one, name of an idea, quality or state, ठीक है. Now एक चीज मैं आपको क्लियर करूं यहाँ पे थोड़ा सा एड अप करके. एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो नाउन जो कि आपके लिए शो नहीं होता. आई मीन नॉट शोन. ओके, मतलब देख नहीं सकते इसको आप. शुगर को, बुक को, टेबल को देख सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, ओके, यूज कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. दैट मींस एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं इनको छू नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते. जैसे दैट्स अ आइडिया, व्हाट इट इज सेड, आइडिया. अब आइडिया क्या है? सपोज फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एन आइडिया कि मैं इतना सारा होमवर्क एक साथ कर लेता हूँ, राइट, पहले, या रिवाइज कर लेता हूँ पहले, ठीक है, और उसके बाद पहले हिंदी रिवाइज कर लेता हूँ फिर इंग्लिश करूंगा. मेरा ये आइडिया, ठीक है, मेरा ये आइडिया. अब जो हिंदी रिवाइज करोगे आप, वो हिंदी रिवाइज आपने की, क्या वो दिखेगी किसी को? नहीं दिखेगी. नॉलेज एंड लर्निंग कम्स अप इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, वो कभी दिखती नहीं है किसी को, वो बस होती है आपके पास. इट इज अ शेयर लेवल थिंग, ठीक है, मतलब फील कर सकते हो. जब आप नो कर सकते हो, यू कैन नो दैट ओके, डू यू नो दिस, यस आई नो दिस, आई कैन शेयर. तो वो शेयर करेगा, ही विल ऑल्सो नो, लेकिन दिखेगी नहीं, राइट. दिस इज हाउ. क्वालिटी जैसे किसी की क्वालिटी है ऑनेस्टी, इट इज गिवन, राइट, ऑनेस्टी या ब्रेवरी, है ना. ऑनेस्टी किसी की दिखती नहीं है, ऑनेस्टी किसी की दिखती नहीं है उसके अंदर. ये कलर की ऑनेस्टी देखो इसके पास है, ऐसा नहीं. शर्ट है ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, पिंक कलर का, दिखेगा, राइट. किस में आएगा? उस आई मीन कॉमन नाउन में आ जाएगा. लेकिन
ऑनेस्टी किसी की दिखती नहीं है, ऐसा नहीं कि ऑनेस्टी यहाँ फिट है यहाँ फिट है, ऐसा नहीं होता ना। दिस इज हाउ ऑनेस्टी एक एक्सरसाइज है, एक क्वालिटी कह सकते हो, एक हैबिट कह सकते हो, ठीक है, आदत, राइट। तो दिस इज हाउ ऑनेस्टी हो गया। ब्रेवरी यानी बहादुरी दिखती नहीं है, यहाँ रखी हुई है बहादुरी, ऐसा नहीं होता है। इट कम्स विद इन, इट कम्स विद इन, तो आपको उसको यूज आउट करना होता है, ठीक है। एंड देन कम्स फियर। फियर क्या होता है? फियर होता है डर। अब फियर किसी की क्वालिटी नहीं है। दैट्स हाउ वी हैव शेयर्ड आइडिया, क्वालिटी और स्टेट। अब ये जो स्टेट है ना, स्टेट का मतलब होता है, ये वो वाला स्टेट नहीं है दिल्ली और मध्य प्रदेश वाला, ओके, ये वाला स्टेट है। सिचुएशन, ओके, या फिर I'll write it down clearly. ओके, सिचुएशन, ठीक है। एक तो हो गया सिचुएशन, एक हो गया डियर कंडीशन। हमें किसी की कंडीशन या फिर किसी की सिचुएशन, यानी वो किस सिचुएशन में है या किस कंडीशन में, राइट। दैट मीन्स वो किस कंडीशन या सिचुएशन में है, वो डर की कंडीशन में है, डर क्या है, या डरा हुआ है या डरी हुई है, या फिर वो कंफ्यूजन की सिचुएशन में, राइट, या फिर वो नॉट इन गुड हेल्थ, यानी हेल्थ जो होती है, हेल्थ दिखती नहीं है, हेल्थ फील होती है। अगर कोई बीमार हो जाए तो दिखती नहीं है बीमारी, बीमारी फील होती है ओनली, राइट। दिस इज हाउ। सो अगर बेटर हेल्थ नहीं है, वेल हेल्थ नहीं है, तो आपकी वो चीज़ दिखेगी नहीं, आपकी वो चीज़ लाइक यू नो इट इज गेटिंग फेल्ट, फेल्ट मतलब फील कर सकते हो, राइट। वो स्टेट होती है। स्टेट वो वाला स्टेट नहीं है, अंडरस्टूड ना। स्टेट दिल्ली और एमपी वाला स्टेट नहीं है, ये वाला है, सिचुएशन वाला और कंडीशन वाला, ठीक है। दिस इज हाउ, ठीक है। सो दिस इज हाउ फियर, फियर क्वालिटी नहीं होती है, फियर आइडिया नहीं होता है, फियर स्टेट होती है किसी की, यानी कंडीशन या सिचुएशन, ठीक है। सो दिस इज हाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर। नाउ पहले वाले जो एग्जांपल्स थे उसमें भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन गिवन था, देखो, राइट, राइट। दिस करेज, हैप्पीनेस, करेज ब्रेवरी, राइट, हैप्पीनेस खुशी, ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब फीलिंग्स जो कि शो नहीं होती, फेल्ट की जा सकती, फेल्ट की जा सकती, ओके। लास्ट वन वुड बी कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। क्या हो गया? ग्रुप, राइट। कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट किया होता है, कलेक्ट। कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्शन होगा, यानी ग्रुप होगा। सो नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स, राइट। हाउ इट इज, जैसे किसी पीपल, एनिमल और थिंग, इनके क्या होंगे? इनके होंगे ग्रुप। जैसे कौन हो सकता है? टीम हो सकती है, हर्ड हो सकता है, बंच हो सकता है। टीम किसकी होती है? टीम प्लेयर्स की हो सकती है, टीम पीपल की हो सकती है, टीम साइंटिस्ट की हो सकती है, टीम किसकी हो सकती है? इंजीनियर्स की हो सकती है, राइट। हर्ड क्या होता है? हर्ड किसका होता है? हर्ड होता है जानवरों के ग्रुप, जो होते हैं ना, झुंड जिसको कहते हैं, जानवर एक साथ चलते हैं ना, इन हर्ड, राइट। जैसे भेड़ होती है एंड ऑल, वो एक हर्ड में चलती हैं, देखा है आपने, नोट किया होगा, एनिमल्स भी एक ग्रुप में चलते हैं, आप आपस में कनेक्ट करके, राइट। दिस इज अ बंच। बंच क्या होता है? बंच थिंग्स का होता है, यानी बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ लीव्स, बंच ऑफ थ्रॉन्स, बंच ऑफ स्टेम्स, ऐसा बोल सकते हैं, राइट, या बंच ऑफ लीव्स, राइट। दिस इज अ, तो दीज आर ग्रुप, मतलब एक नहीं होगा, मल्टीपल होंगे। अब किससे काउंटर होगा इसका? नो, प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन होता है वन, और कलेक्टिव नाउन होता है नॉट वन, मतलब कलेक्शन एंड ग्रुप ऑफ समथिंग, ठीक है। यानी उसमें बंच होते हैं, यानी बंच में सब मोर देन वन ही होते हैं हमेशा, ठीक है। सो दिस इज हाउ। अब इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल थे, इसमें कुछ कलेक्टिव नाउन है, बताओ।
कलेक्टिव नाउन में यहाँ पर आई गेस कुछ कलेक्टिव नाउन नहीं है। क्यों? टीचर नहीं है, स्कूल नहीं है। स्कूल कॉमन नाउन में आता है, स्कूल कलेक्टिव नाउन में नहीं आएगा। बट हाँ, एक वे से कर सकते हो, क्लास जो होती है ना वो होती है कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्लास होती है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या स्कूल को ऐसे बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ क्लासेस, ऐसे जो बोल सकते हैं, ठीक है। दिस then comes up other important features of nouns. Okay, so we have done with the noun definition, examples of that, understanding of examples, comparisons, relations, right? Then comes up types of noun, unki differences, everything in a good way, right? Then comes up other important features of noun. कुछ parts और हैं noun में जो important है, जैसे सिंगुलर एंड प्लूरल। एक्चुअली ये क्या होता है? ये होते हैं नंबर्स ऑफ नाउन। नंबर्स ऑफ नाउन का मतलब होता है नाउन जो आपका होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, कॉमन, जैसे हमारा था काउंटेबल नाउन में, एंड अनकाउंटेबल, सिंगुलर एंड प्लूरल। मतलब कोई भी नाउन हमारा या तो वन होगा या मोर देन वन होगा। सिंगुलर में आपका आ गया डॉग और प्लूरल हो गया उसका डॉग्स। दैट मीन्स कोई भी थिंग आपकी, प्लेस, पीपल, एनिमल और थिंग और आइडिया, कुछ भी, इन सब की अगर हो पॉसिबल होगा तो उनका सिंगुलर और प्लूरल हो सकता होगा। जैसे डॉग का डॉग्स हो गया, बॉक्स का बॉक्सेस हो गया, राइट? दिस इज हाउ। देन कम्स अप प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मींस प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद द कैपिटल लेटर। देखो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है इसमें, प्रॉपर नाउन्स को आपको हमेशा कैपिटल लेटर्स में राइट अप करना होता है, ठीक है, राइट? प्रॉपर, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल दिल्ली, ठीक है, और क्या कुछ भी इंडिया कर सकते हो, ठीक है, ओके, दिस, फिर दिस। तो इनको हमेशा वी नो दैट प्रॉपर नाउन का हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। और सॉरी, आई एम सो सॉरी डियर, किसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है? अगर कोई भी सेंटेंस जहां से स्टार्ट होता है वहां फुल स्टॉप के बाद। बट कहीं भी प्रॉपर नाउन आता है, किसी का नेम आता है, आप कह सकते हो किसी का भी हो सकता है। अर्जुन जो था वो नेम, किसी का भी नेम होगा, लेकिन जाएगा वो विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर, ठीक है, दिस। देन कम्स अप वन मोर, सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल सो नो प्लूरल फॉर्म ऑफ दोज आर देयर, जैसे एडवाइस एंड नॉलेज। ये कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। क्यों? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मोस्टली, सॉरी, फीलिंग्स अनकाउंटेबल ही होती हैं। दैट्स हाउ, राइट? सो दैट्स हाउ उनके कभी भी नाउन्स में काउंटेबिलिटी नहीं होती, इसलिए वहां पर प्लूरल नहीं होता, उनका सिंगुलर ही सिंगुलर होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ ओवर दैट। देन कम्स अप डियर यूजिंग करेक्ट नाउन फॉर्म इन द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके, एक इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है साथ में, यूजिंग करेक्ट नाउन फॉर्म इन द सेंटेंस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मेथड से। क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग समझते हैं। देखो यहां से भी समझ लेंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल से। यूजिंग करेक्ट नाउन फॉर्म इन द सब्जेक्ट, सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सपोज आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल टू यू, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। राम, ठीक है, राम प्लेज फुटबॉल, ठीक है। तो राम हो गया प्रॉपर नाउन विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर वी हैव स्टार्टेड, ठीक है, ये अप्लाई यहां हो गया। प्लेज, प्लेज हो गया खेलना। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट आपका आएगा। वो कैसे? जैसे राम प्लेज फुटबॉल, तो राम खेलता है फुटबॉल, खेलता है के लिए प्लेज आ जाएगा, राइट? यानी क्योंकि राम इज सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन है, इसके अकॉर्डिंग आपका प्ले और प्लेज ये चेंज होगा इन द सेंटेंस
वर्ब में, ठीक है, एंड उसके बाद फुटबॉल आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर देयर एज पर द सिंगुलरिटी एंड प्लूरलिटी ऑफ नाउन, ठीक है। अब वो नाउन कोई भी हो सकता है, नाउन हो सकता है आपका पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल और आइडिया, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब होती है वो सेट होती है। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तब आपको भी ज़्यादा भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो दिस इज हाउ, मतलब एक सेंटेंस में जो वर्ब आती है वो नाउन और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ओके, देन कम्स अप वन मोर थिंग। ओके, द स्कूल बेल रैंग फॉर एग्जाम्पल। अब नाउ हम थोड़े से एग्जाम्पल्स करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, द स्कूल बेल रैंग। स्कूल इज ए कॉमन नाउन, प्लेस, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं स्कूल बेल रैंग वेदर द स्कूल इज ए कॉमन नाउन, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ, यस, स्कूल इज ए कॉमन नाउन बिकॉज स्कूल का नेम नहीं गिवन है, राइट, और स्कूल है प्लेस इसमें, ठीक है। यस, करण रीड ए बुक। बुक इज ए काउंटेबल नाउन, ठीक है ना, बुक एक काउंटेबल नाउन है, हाँ है, बिकॉज बुक का बुक्स हो सकता है और ये थिंग है, ठीक है। शी हैज डीप ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, right noun, idea, right, honesty is an abstract noun, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी, और वो एक आइडिया है, मतलब वो कभी भी शो नहीं होता, दिखता नहीं है, ठीक है। A flock of birds flew over. A flock is a collective noun group. फ्लॉक क्या होता है? फ्लॉक होता है बर्ड्स का ग्रुप, हर्ड होता है जानवरों का ग्रुप, जैसे शीप्स एंड गोट्स होती है, और फ्लॉक होता है बर्ड्स का ग्रुप। सो फ्लॉक इज ए कलेक्टिव नाउन ग्रुप, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, ये कलेक्शन होता है उनका, ठीक है। नाउ ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स है जिसमें हमने एक एक राइट ना, सॉरी, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ऐसे करके वो इसको यूज करके दिखाया कि हाँ ये प्लेस का एग्जांपल है ना, उनका ये थिंग का है, आइडिया का है, ये ग्रुप का है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ नाउन्स, ठीक है। नाउ प्रैक्टिस एक्टिविटी, ओके, लेट्स डू इट आउट some practice part as well in the same consideration, ठीक है। सो प्रैक्टिस एक्टिविटी, ये प्रैक्टिस एक्टिविटी जो आप करोगे इसमें हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कितना आपको समझ में आया कितना नहीं, ठीक है। लेट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन इन ईच सेंटेंस, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है इन टाइप ऑफ नाउन को राइट इस सेंटेंस में, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट वन आप भी बताना अपने में और कमेंट करना, ठीक है, मेरे बताने से पहले। तो द आर्मी मार्च्ड इनटू द वैली, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस इज इट, सॉरी, द आर्मी मार्च्ड इनटू द वैली। आर्मी क्या हुआ, नाउन कौन सा है, आर्मी है, हाँ, मार्च इनटू द वैली, इसमें नाउन बताना है, तो आर्मी नाउन है ना, मार्च तो वर्ब है, इनटू द वैली ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आर्मी। अब द आर्मी, अब बताओ द आर्मी कौन सा नाउन है, बताओ, प्रॉपर नाउन है, नहीं क्योंकि नाम नहीं दिया है, कॉमन नाउन है, यस हो सकता है क्योंकि ना कॉमन है, ओके, ओके। थर्ड वन वाज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल हो सकता है क्योंकि काउंट हो जाती है, अनकाउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल नहीं है। देन कम्स अप लास्ट वन कलेक्टिव नाउन, यस इट इज ए कलेक्टिव नाउन बिकॉज ज़्यादा बेटर है क्योंकि आर्मी कलेक्शन होती है सोल्जर्स की, ठीक है, तो सिपाही होते हैं उसमें, सोल्जर्स होते हैं, उनकी कलेक्शन होती है, इसलिए आर्मी वुड बी कंसिडर्ड एज कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। नाउ ये बताओ इसमें क्या है, इसमें नाउन है गोल्ड आपका, राइट, ना कि प्रीशियस। इज हो गया वर्ब, प्रीशियस हो गया एडजेक्टिव और मेटल हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हो गया द या इसमें हो गया द आर्मी, इसमें हो गया गोल्ड, ओके। नेक्स्ट, द फ्रेंडशिप बिटवीन देम ग्रू स्ट्रॉन्ग। फ्रेंडशिप बिटवीन देम ग्रू स्ट्रॉन्ग। अब देखो कॉमन प्रॉपर नाउन तो नहीं है, नहीं कोई नाम नहीं, कॉमन नाउन नहीं, कॉमन नाउन नहीं है, काउंटेबल नाउन नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन नहीं, करेक्टिव नाउन नहीं, इस ये है द फ्रेंडशिप, इसमें आया द फ्रेंडशिप बिटवीन देम ग्रू स्ट्रॉन्ग। बिटवीन देम तो आपका कंजंक्शन लगा हुआ है और ग्रू लगा हुआ है, वर्ब आपका हो गया, और स्ट्रॉन्ग हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। तो द फ्रेंडशिप का क्या मतलब हुआ, दोस्ती। तो फ्रेंडशिप दोस्ती, इसका मतलब तो ये होता है कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी ये कि एक आइडिया तो नहीं है, क्वालिटी है,
एक क्वालिटी कह सकते हो, फीलिंग भी कह सकते हो, राइट। अच्छा, आपको दिखती नहीं है फ्रेंडशिप, जैसे वहां रखी हुई है फ्रेंडशिप, इतनी बड़ी है फ्रेंडशिप, इस कलर की है फ्रेंडशिप, ऐसा तो नहीं होता, मुझे दे दो एक फ्रेंडशिप, ऐसा नहीं होता, राइट। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक दैट आई फील योर फ्रेंडशिप, आई एम थैंकफुल फॉर योर फ्रेंडशिप, मतलब वो एक फीलिंग होती है, यानी सपोर्ट होता है, राइट। दिस इज हाउ, राइट, दिस, सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टूड कि कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से नाउन्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक और एक्सरसाइज करते हैं मोर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल नाउन, ओके। फर्स्ट, आइडिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्रेंथ, राइट। नाउ अब इसको क्या से करना है पता है, इसमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स करना है डैश में, लेकिन वो फिल इन द ब्लैंक्स एक आइडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइडिया। आइडिया मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब यहां पे आपका क्या आ सकता है, आप खुद सोचो। करेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्रेंथ। करेज का मतलब होता है हिम्मत या बहादुरी, ताकत से ज्यादा बहादुरी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो यहां पे ये लिख सकते हैं करेज, ठीक। करेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्रेंथ। करेज क्या है? एक आइडिया है, राइट, एक आइडिया है। देन द ग्रुप चीयर्ड लाउडली। द, अब ये बोल रहे चीयर्ड लाउडली, ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है जो चीयर्ड लाउडली करता है, चीयर करता है। अब देखो, आर्मी तो चीयर करती नहीं, नहीं करती। स्टूडेंट्स कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, यानी क्लास कर सकते हो यहाँ पे, हाँ। लेकिन क्लास एक, हाँ क्लास कर सकते हो, क्लास मीन्स कलेक्टिव नाउन। द क्लास चीयर्ड लाउडली, क्लास का मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कर सकते हैं, कर सकते हैं। टीम कर सकते हो, हाँ टीम भी कर सकते हैं, राइट। क्लास, राइट, ठीक है। टीम, और क्या कर सकते हैं? क्लास, टीम एंड, क्लास, टीम एंड क्रू, क्रू कर सकते हो, क्रू भी टीम ही होती है, राइट। क्रू टीम ही होती है। ये सब चीयर कर सकते हैं लाउड, मतलब खुश होके, जैसे कोई अचीवमेंट कर लिया तो उसके लिए खुश होके आप बोल सकते हो, राइट। दिस इज नाउ चेंज दीज सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल। छोटी सी और एक्सरसाइज करते हैं, ओके। टीचर का क्या हो जाएगा? टीचर्स, ऐसा लग जाएगा, ठीक है। बॉक्स का क्या हो जाएगा? बॉक्सेस। ये तो आपको पता है, नाउन्स में एस या ई एस ऐड करके आप उसका नंबर एंड केस डिफाइन करते हो, ठीक है। दिस एंड लीव का हो जाता है लीव्स। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका प्लूरल बनाते पे उसकी स्पेलिंग डिफरेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है, जैसे लीफ हो गया, लीफ में एफ हट जाएगा और वी आ जाता है और ई एस ऐड हो जाता है। ये भी एक रूल है ना, दैट्स ऑल, ठीक है। ये हो गया, छोटा सा प्रैक्टिस और है। So we have come up with, we have come up with the collection of the exercises as well with the practice. वहीं पे आप लर्न करो, समझो, अंडरस्टैंड करो, कंफ्यूजन क्लियर करो, कंपेयर करो, रिलेट करो, क्लैरिटी लाओ और वहीं पे अप्लाई भी कर लो, राइट, सब कुछ मिक्स करके, राइट। दिस इज हाउ। देन सैंपल क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, फेथ इज द एग्जांपल, ठीक है। अब बताओ, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सैंपल क्वेश्चन से चूज द करेक्ट ऑप्शन, फेथ इज द एग्जांपल। फेथ का मतलब क्या होता है? फेथ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फेथ का मतलब होता है भरोसा, ठीक है। फेथ का मतलब होता है भरोसा, फेथ, भरोसा। अब बताओ, प्रॉपर नाउन नहीं है, कलेक्टिव नाउन नहीं है, कॉमन नाउन नहीं है, काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये फीलिंग है, राइट और नॉट? यस। अब बताओ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, तो ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस्ड इट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। फेथ, फेथ मतलब फेथ हो गया भरोसा, विश्वास, राइट, कि आई फेथ यू, आई एम इन फेथ ऑफ यू, मतलब मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, तुम मेरे पैसे दे दोगे वापस, ऐसे बोलो, या तुम मेरी हेल्प करोगे, या तुम मेरे को पढ़ा दोगे, ऐसे कर सकते हो, समझ सकते हैं, राइट। दिस एंड देन कम्स अप फाइंड द कलेक्टिव नाउन्स इन द सेंटेंस। अब इसमें कलेक्टिव नाउन बताना है, ए ऑफ स्टूडेंट्स आर, राइट। बताओ, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? ग्रुप होता है ना, या क्लास हो गया, ग्रुप कर लो। जैसे कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, ट्रिप के लिए गया हुआ है, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा, करेक्ट और नॉट? दिस इज हाउ। देन कम्स अप डियर, फिल इन द ब्लैंक। वाटर इज एन, कैसा है वाटर? वाटर कैसा होता है? कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन होता है? नहीं होता है।
कॉमन नाउन होता है, नहीं होता। कलेक्टिव नाउन होते हैं, नहीं होता। काउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होता, काउंटेबल नहीं होता, अनकाउंटेबल यस अनकाउंटेबल होता है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आपका वही रिवाइज भी हो रहा है, वही चेक भी हो रहा है, जो हमने पहले पढ़ा वो सब चेक हो रहा है और डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स भी आ रहे हैं, राइट और नॉट। दिस इज हाउ इट्स अ गुड एक्सरसाइज। देन एरर करेक्शन, देखो सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, ऑल टाइप के। ये हो गया आपका ऑप्शन बेस्ड एमसीक्यू, ये फिल इन द ब्लैंक हो गया, ये फिल इन द ब्लैंक हो गया, राइट। और ये आपका एरर करेक्शन हो गया। सो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ के एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पैटर्न्स होते हैं, हमने सबको टच किया है, सो दैट कलेक्टिवली आपको एक आइडिया होलसम हो जाए कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस फॉर्मेट में हो सकते हैं, कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, राइट, किस बेस पे हो सकते हैं, राइट, किस तरह से पूछ सकते हैं, एवरीथिंग, राइट। दिस इज एरर करेक्शन। द टीम ऑफ अ सोल्जर वर ब्रेव, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द नाउन यूसेज। आप बताओ, सबसे पहले तो टीम ऑफ द सोल्जर वर ब्रेव, सबसे पहले बताओ ये कौन सा, इसमें नाउन द टीम हो गया, राइट। तो टीम कौन सा नाउन है, कलेक्ट प्रॉपर है, नहीं है, कॉमन है, नहीं है, कलेक्टिव है, यस, काउंटेबल अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट तो है नहीं, कलेक्टिव है। कलेक्टिव क्यों, कलेक्शन है सोल्जर्स का, बताया था। ओके ये तो आइडेंटिफाई कर लिया आपने, ठीक है, कि ओके द टीम में सोल्जर्स, टीम राइट, सॉरी टीम है इसमें गिवन, राइट, और सोल्जर्स की टीम है, सो वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, दैट ओके टीम हो गया कलेक्टिव नाउन। लेकिन अब एक चीज लॉजिक लगाओ, किसी सोल्जर्स की जो टीम होती है यानी ग्रुप होता है, वो टीम नहीं कहलाती है, वो आर्मी कहलाती है, राइट। क्योंकि इसमें यही तो क्वेश्चन है, तो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट। आइडेंटिफाई करो पहले, फिर करेक्ट द नाउन यूसेज, नाउन को करेक्ट करो। जो टीम लिखा हुआ है इन्होंने नाउन यहाँ पे, ये टीम नहीं होता है, क्या होता है, द आर्मी, राइट, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, राइट, वर ब्रेव, सिंपल, राइट। क्योंकि कलेक्टिव नाउन इसमें कौन सा हुआ, ग्रुप किसका था, या कलेक्शन किसका था, सोल्जर्स का। टीम गिवन था तो वो हमने पहले बताया, बट वो करेक्ट नहीं था। करेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि सोल्जर्स की जब गिवन है, सोल्जर्स की टीम को हम वी कॉल इट एज आर्मी, करेक्ट, तो वो आर्मी हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज, ओके। सो बाय दिस डियर we have come up at the end of the slides, right. This whole exercise of noun revision topic has been done, right, for you, and I hope that you have understood. Obviously you know that what is noun and all, you have revised in a better relatable way. हर चीज को हमने यहाँ कवर भी किया है, अंडरस्टैंड भी किया है इस मैनर में कि ये आपका लास्ट रिवीजन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। इसके बाद रिवीजन का फुल फ्लैश रिवीजन का टाइम नहीं है, यहाँ से रिवाइज करो हमारे साथ, राइट, एंड वी विल मेक इट आउट ऑल कंफ्यूजन्स एंड डाउट्स ऑफ योर क्लियर, एंड उसके बाद हम जाके PYQs में यही सब अप्लाई करेंगे। तब देखना आप कितना ईजियर लगेगा आपको कि यस मॉर्निंग में हमने ये पढ़ा था, ये वाला ये बताया हुआ था, ये तो यहाँ पे ये आ गया, राइट, दिस इज अ, ठीक है। तो आई होप विद द noun revision class of English grammar concept series, right, for the all exams of RMS Sainik School, UP Sainik School and All India School Sainik School, right, is being done. We have shared the tips and tricks to you as well. From the basic to advanced, we have covered each and everything regarding the particular topic. I have given you all kind of examples, I have given you all kind of relation with the examples, I have given you all kind of confusion clarity with the examples as well, with the help of definitions and examples, right. We have done multiple of exercise in different way of the question patterns which would be there in the exams, exactly, ठीक है। तो on the same basis we have covered with the first topic of our grammar concept revision series with the part of speech which is of noun, ठीक है। तो I hope you have covered and cleared with this slide and this video in a very well manner, right। इसी के साथ इवनिंग में हम लोग PYQ सीरीज फिर से लेके आएंगे, द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पेपर जो भी होगा हमारा, राइट, अप टू 2022 हम 2021 इनफैक्ट हमने कवर कर लिया है।
2022 का हम नेक्स्ट स्लाइड में राइट कवर करेंगे। जितनी टेक्निक्स यहाँ पे पढ़ी हैं सबको वहाँ एक बार आप रिवाइज खुद से करोगे, राइट। सॉरी, just pick 10 to 20 questions, this is the suggestion, just pick 10 to 20 questions of from any book of noun, ठीक है, और उनको अपनी रफ या प्रैक्टिस नोटबुक में सॉल्व आउट करना। उससे क्या होगा, आपका टच बना रहेगा। उसके बाद PYQs आप खुद से करो या फिर हमारे साथ जब हम सीरीज करते हैं तब करो, ठीक है। बट कमेंट जरूर करना है, दैट इज द रिक्वायर्ड पार्ट फ्रॉम योर एंड, ठीक है। उस पार्ट का हमें आपका वेट है, ठीक है। आप कमेंट्स डालेंगे एंड हम उन कमेंट्स के बेसिस पे डिसाइड करेंगे हम क्या इंप्रूवमेंट इसमें करें या हम किस तरह से और बेटर आपको करके दे सकते हैं। करेक्ट, राइट स्टूडेंट। सो आई होप यू हैव कवर्ड अप विद फर्स्टली फॉर्म फिलिंग। मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ फॉर्म फिलिंग के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। समटाइम्स करेक्शन मिस्टेक्स हो जाती है फॉर्म फिलिंग में और लास्ट डेट आ जाती है, फिर बच्चों का लॉस हो सकता है, राइट। सो दिस इज नॉट टू बी डन, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। हैव योर सेपरेट प्रैक्टिस कॉपीज, बुक्स, ऑल स्टडी मटेरियल्स एंड उसके बेसिस पे आप टाइम टेबल बना के, प्लानर बना के अपनी स्टडीज स्टार्ट करो। मॉर्निंग में रिवाइज करो 1 टॉपिक एंड इवनिंग में 1 PYQ। इतना भी करोगे ना तो भी सफिशिएंटली आपका कवर अप हो जाएगा सारा सिलेबस एंड सारे PYQs विद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मटेरियल एज वेल, हम जो शेयर करेंगे आपको, राइट। इतने से भी हो जाएगा। एक्स्ट्रा आप करते हो, दैट इज योर चॉइस, जितना भी करोगे, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड in this series. We have started this new series and we have covered first topic. We will be covering up with more upcoming topics right in the same series and PYQ series would be going likewise, ठीक है। So students, please do subscribe our channels, right? Please share, follow एंड लाइक आवर चैनल एज वेल एंड डू कमेंट आउट, क्योंकि कमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आप लोगों का। उससे एंगेजमेंट का कंफर्मेशन आता है दैट यस यू हैव टेकन द क्लास सिंसियरली एंड सीरियसली। कितना समझ में आया एंड कितना आप उसको बेटर अप पढ़ पा रहे हो, उसके हेल्प कितनी ले पा रहे हो, दैट वी विल चेक कि ओके हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प हो रहा है हमारे वीडियो से। कमेंट्स आप कम कर रहे हो, कमेंट्स और ज़्यादा करो, दैट वी विल बी लाइकिंग दैट, राइट। ओके, थैंक यू सो much. With the same series, we have covered up all of the basics and advanced part as well. We will be coming up in the next series as well. Okay, all the best for your preparations. Take care till then. Goodbye. Bye. Thanks.